Hello, Namaste and welcome to all. On the behalf of the team Antarnath, I welcome you all for a webinar on scope, opportunities and challenges for e-vehicle in India. Dear friends, as we all know that in a current scenario, everybody is talking about the environment, about the sustainable development, and from last couple of months there are news that entire automobile sector is going to change because of the introduction of e-vehicles in our country. Already the e-vehicle technology was established long back, but there are certain challenges, and because of that still it is not so much popular. So in today's webinar we are going to discuss about the introduction and insights of automotive industry, understanding of electric vehicle, their need, significance and future, current status of electric vehicles, learning EV system and the subsystem, then India's roadmap for e-mobility and business opportunities in e-vehicle. एक आपके सामने पिक्चर दिख रहा है, दिस जनरलाइज वन द अपर पिक्चर, ऊपर वाला जो सीन दिख रहा है कि आज का करंट सिनेरियो है कि जहाँ पेट्रोल पंप्स है, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, एंड वी वेर रनिंग आवर व्हीकल्स ऑन दिस द क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल डीजल जो भी है. एंड व्हाट विल बी द सिनेरियो, जस्ट इमेजिन दैट व्हाट विल बी द सिनेरियो आफ्टर 2030, 2030 के बाद क्या होगा, उसका एक पिक्चर दिया हुआ है बॉटम एंड पर. So the charging stations are there, and there is a charging of that e-vehicles. We all know that from 1st April 2020 the BS6 is become a mandatory for the new vehicles. Abhi BS6, BS4, we all know that these are the Bharat stage 1, 2, 3, 4, 5, 6, and they were been concerned with the environmental pollution, or they are assured about that these vehicles are producing less amount of pollution as compared to the conventional vehicles. अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के अंदर, स्पेशली बिकॉज देयर वर सो मेनी रूमर्स ऑन दी न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल कि पूरा ऑटोमोटिव सेक्टर कोलैप्स हो जाएगा वंस द इलेक्ट्रिक व्हीकल कम्स इनटू द मार्केट और कम्स ऑन द रोड. तो ऐसा कुछ होने वाला है क्या? So when we discuss this one, you will realize that though the electric vehicle is there, but the main function of that vehicle are to produce or to run the wheel, and whenever there is running of wheel, the mechanical engineer comes into the picture. So electric vehicles is a part where a mechanical engineer as well as the electrical engineer bring work jointly for the development, for the research and for the betterment of the society. So let's begin with this one, that introduction and insight. कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है उसके बारे में कुछ फिगर्स आपके सामने रख रहा हूँ. हम सबको पता है कि इट इज़ अ मेजर ग्रोइंग मार्केट. ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज़ अ मेजर मार्केट फॉर द एंटायर वर्ल्ड. if you look at the contribution of that automotive industry, it is been considerable one. Second thing, in the country's industrialization, the automotive sector plays a very vital role. When you look at the GDP of the manufacturing sector for India, it is expected that it will be going to increase from 15% to 25% by 2024, and this is because of the manufacturing of electric vehicles, and that gives a sensation in automotive sector in India. So हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऑटोमोटिव सेक्टर का इम्पोर्टेंस कितना है, दैट हाउ मच इज कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, हाउ मच अमाउंट ऑफ employable work or employability he is going to create, and how it is going to boost because of the introduction of electric vehicles. Okay, हम लोग का इलेक्ट्रिक व्हीकल मीन्स व्हाट, द व्हीकल, द कन्वेंशनल व्हीकल इन विच वी आर गोइंग टू रिप्लेस द इंजन. उसका जो आईसी इंजन हम लोग अब तक के जो यूज़ करते आ रहे हैं, आज जो कार हम लोग सड़क पर या रोड पर देखते हैं, दीज आर दी आईसी इंजन्स, इंटरनल कंबशन इंजन. सो व्हेन वी गो फॉर ईवी, इन शॉर्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईवी. ईवी में क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर है, इंजन इज रिप्लेस बाय मोटर एंड दी बैटरीज फॉर द स्टोरेज ऑफ energy or storage of power, motor or tractions.
motor for propulsion. Already we know that there is a shifting of the diesel railways or diesel locomotives onto the electricity, so they are using the traction load is there. Then electric motor is containing the battery plus the electric vehicle contains the battery, motor, and that battery is getting a power from a collector. So that collector maybe it may be self-contained battery, maybe the solar panel or electric generator which convert this energy into the electricity. So electric vehicles is not only the vehicles just like the moped, those are very common, very popular on the roads, but it includes road and rail vehicles, जैसे आपका कार है, ट्रक्स है ना, रेलवेज है, then surface drones, underwater vessels, electric aircraft and electric spacecraft. अब आप अगर देखो तो आपको समझ में आ रहा है कि how much sector it is going to covered, and because of that we can imagine that how much amount of or how much volume of the market is available for electric vehicles. There is one report, and with reference to that report, it is expected that there is increase in the electric vehicles from 2% to 22% by 2030. So we can imagine that in 2016 it is only 2%, और 2030 में ऐसा हो सकता है कि 22% जो व्हीकल्स होंगे वो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे. अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, दैट इट इंक्लूड्स द व्हीकल्स लाइक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, जो बहुत कॉमन है, आप लोगों ने देखा हीरो का इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बहुत सारी लोकल कंपनियाज भी है. अगर आप नासिक की बात करो तो नीबे मोटर इज देयर इन नासिक, जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स बनाते हैं. Then three wheelers, these are very popular in Delhi and then south part of India, also in Tripura and Assam. Electric car and electric buses, हम लोगों ने अभी तक के इलेक्ट्रिक कार देखे कि जो गोल्फ कार्ट यूज़ होता था, या बहुत सारे बड़े बड़े जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक कार यूज़ होती है. इलेक्ट्रिक बसेस बीन यूज बाय मेनी ऑफ द IT कंपनीज इन बैंगलोर. Then how the electric vehicles are being classified? There are two types of electric vehicles. The first one is a BEV, okay, and second one is a PHEV, that is plug-in electric vehicle, and BEV means battery operated electric vehicles. So in battery operated electric vehicle, this motor is going to replace the IC engine, okay, and that motor is getting the electricity from the grid or from the batteries, and it will propel the shaft. Whereas when we talk about the hybrid vehicles, hybrid means the partial power they are going to taken from the motor, electric motor, and partial power is generated by burning of liquid fuel such as gasoline or diesel. Okay, मतलब ये इसको बाय फ्यूल सिस्टम भी बोल सकते हैं कि जिसमें हम लोग 50% इलेक्ट्रिसिटी या 40% यूज़ कर रहे हैं, रिमेनिंग पावर इज जनरेटेड यूजिंग अ कन्वेंशनल फ्यूल. मतलब यहाँ पर दोनों चीज़ होगा, AC इंजन भी होगा और आपका मोटर्स भी होगा और बैटरीज भी रहेंगी. नाउ this is a broader classification that based on whether it is a purely the electric vehicles or hybrid vehicles. Another classification is according to charging time. Okay, then second is driving range, कि एक बार में आप कितने दूर तक या कितने किलोमीटर बैटरी रन हो सकता है. चार्जिंग टाइम मीन्स हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू फुल्ली चार्ज दी बैटरी. ड्राइविंग रेंज मीन्स अगर आपने फुल बैटरी चार्ज कर लिया है तो कितने किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा. देन मैक्सिमम लोड इट कैन कैरी, कितना लोड कैरी कर सकता है. जैसे आप लोगों ने गोल्फ कार्ट देखा है, सो ही इज़ गोइंग टू कैरी ओनली 4 पीपल, 3 पीपल, 6 पीपल लाइक दैट. तो वो एक है. The most important characteristics of an electric vehicle when it is come to the consumer, कि कंज्यूमर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ड्राइविंग रेंज, कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा एक बार आपने बैटरी फुल्ली चार्ज कर लिया. दूसरा है चार्जिंग टाइम ऑफ बैटरीज, द टाइम रिक्वायर्ड टू फुल्ली चार्ज. बट चार्जिंग टाइम इट डिपेंड्स अपॉन द इनपुट वोल्टेज, करंट, बैटरी टाइम एंड बैटरी कैपेसिटी. ये 4 पैरामीटर है. Because right now also all the electric vehicles are facing that problem, that is the charging time. अभी भी ऑटो रिक्शा को अगर आपको चार्ज करना है then it is going to take 6 to
12 hours. So that time is very big time as compared to the total 24 hours in a day. Now basic structures of hybrid vehicle क्या होता है? ये आपका कन्वेंशनल कार है. कन्वेंशनल कार में हम लोग क्या करें कि वी आर गोइंग टू रिप्लेस द इंजन पूरा हटा दिया आपने. व्हेन यू रिप्लेस द इंजन, ट्रांसमिशन, सब कुछ हटा दिया, गियर बॉक्स पूरा हट गया. और यहाँ पर उसके बजाय क्या आ गया कि इफ़ यू लुक एट द कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर. ओके, traction batteries रखिए. from traction batteries the power is supplied to the electric motor. that electric traction motor will produce the transmission. it produces rotated shaft, ट्रांसमिशन हो रहा है. देन ऑन बोर्ड चार्जर दिया है इसमें कि जो रनिंग में भी चार्ज होता रहेगा. दूसरा आपका चार्जिंग पोर्ट है, दैट इन अ नाइट और ऑन चार्जिंग स्टेशन यू कैन गो एंड चार्ज योर व्हीकल. ऑक्सिलरी बैटरीज रखे. ऑक्सिलरी बैटरीज आर रिक्वायर्ड टू, अभी दो बैटरीज की है. ट्रैक्शन बैटरीज विल प्रोवाइड द पावर टू प्रोपेल द शाफ्ट, वेयर ऑक्सिलरी बैटरीज विल प्रोवाइड द पावर फॉर लाइटिंग एंड फॉर अदर एप्लीकेशन, ऑक्सिलरी एप्लीकेशन. देन थर्मल system, that cooling system is there, which is there in our conventional vehicles also. तो यहाँ पर भी हीट जनरेट होने वाला है. पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर एंड DC AC DC कन्वर्टर, कि यहाँ पे कन्वर्टर लगा है कि दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट. सो व्हेन यू लुक एट द मेजर कंपोनेंट इज द ट्रैक्शन बैटरी पैक, देन पावर इन्वर्टर, कंट्रोलर, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड डिजाइन. सो वी नो दैट हाइब्रिड मीन्स इसमें से आप 50% या पार्शियल पावर जनरेट कर रहे हैं बैटरी से, पार्शियल पावर जनरेट हो रहा है यूजिंग ए लिक्विड फ्यूल. इसमें दो कॉम्बिनेशंस जनरली प्रेफर होते हैं. वन इज अ सीरीज एंड सेकंड वन इज अ पैरेलल. सीरीज में क्या हो रहा है कि इफ यू लुक एट द पिक्चर डायग्राम, द इंजन एंड बैटरी दे वेर मीन इन सीरीज विथ इनका, दे आर केप्ट इन सीरीज. सो पावर प्रोड्यूस्ड बाय इंजन एंड पावर जनरेटेड फ्रॉम बैटरी, they are given as an input to the inverter will change it from DC to AC, and then it is supplied to the motor, and traction motor will give the input to the reduction gear, and from that to the drive wheels. मतलब दोनों जो कंपाउंड लगे कि आपका इंजन और बैटरी है, दे आर प्लेस इन सीरीज विथ ईच अदर, इसलिए हम इसको बोलते हैं सीरीज सिस्टम. सीरीज सिस्टम के कुछ फ़ायदे क्या आता है कि आउटपुट जो होगा, इंजन आउटपुट स्टेडीली जनरेट एंड सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू इलेक्ट्रिक मोटर एंड इफिशिएंटली चार्ज द बैटरी. दिस सिस्टम इज यूज इन कोस्टर हाइब्रिड. नाउ सेकंड सिस्टम इज पैरेलल. पैरेलल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि बैटरी इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ पावर डायरेक्टली टू द ट्रांसमिशन मोटर एंड ऑल्सो ट्रैक्शन मोटर, एंड इंजन इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द पावर डायरेक्टली टू ट्रैक्शन मोटर. सो फ्लो ऑफ पावर फ्रॉम the battery and the engine to the wheel, they are placed in parallel to each other. So this system is called as, or this arrangement is called as the parallel arrangement. This kind of system is utilized according to the prevailing condition, and the power from both the motor, battery as well as engine, that is supplied to the wheels. Now there is a question that why government प्रमोट द इलेक्ट्रिक व्हीकल, या क्या ज़रूरत हो गया कि क्यों लगा? बिकॉज IC इंजन्स बीइंग डेवलप इन 1880 1817 समथिंग लाइक दैट, एंड नाउ देर इज़ अ नीड. दो द अभी भी जो मार्केट है आपका, मैक्सिमम मार्केट इज कैप्चर बाय IC इंजन, देन व्हाई देर इज़ अ नीड, स्पेशली व्हेन इट इज़ कंसर्न विद आवर कंट्री इंडिया. भारत के बारे में जब बात करेंगे हम लोग, तो सबसे पहला रीज़न जो हम लोगों को दिखाई देता है, दैट इज़ एयर क्वालिटी इंडाइसेस. वी ऑल नो that the major cities or metro cities of India, they are facing a huge problem related to the air quality. Best example is Delhi. अभी भी आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, दिल्ली में रोज आता है कि आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स ड्रॉप हो गया या एयर का प्योरिटी लेवल कम हो रहा है. सो लाइकवाइज दिल्ली, मुंबई, Kolkata, Chennai, not only these four metros but most of the cities in our country, they are facing a problem of air quality indices. So there is a need to improve that air quality. These air quality indices are directly related to automobile pollution, and so we all know that Delhi government banned the diesel vehicles, या 15 साल से पुराने आपके vehicles नहीं चल सकते, और Delhi government initiated the CNG program, and now they are using the electric rickshaws are very popular in Delhi. This automobile pollution not only reduces the air quality, but it also affects on the
global warming, because whenever we look at the global warming, the greenhouse gas emission is the responsible for global warming, as CO2, which is the one of the pollutants from automobile, is the major contributor for global warming. तो ये भी बचाना है. Entire world is working to minimize the greenhouse gas emission and so as to reduce the effect of global warming, because we all know the effects. So when we look at the reason, हम लोग रीजन देख रहे थे. पहला था एयर क्वालिटी इंडाइसेस, सेकंड आपको बताया ऑटोमोबाइल रिलेटेड पोल्यूशन, थर्ड हो गया ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इमिशन, फोर्थ वन जा था तो रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन फोसाइल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी. हम लोग को सबको पता है कि इंपोर्ट जो है इंडिया, हम लोग जो क्रूड पेट्रोलियम है उसका 90% इंपोर्ट करते हैं. सो मेजर ऑफ आवर द इकोनॉमी is been utilized just to purchase the fossil fuel, and we are not the energy security country. We depend on the Gulf and other countries for the importing of oil. बाद में एक और इसका अच्छा रीजन ये है कि इंडिया कैन बिकम द ग्लोबल प्रोवाइडर फॉर क्लीन मोबिलिटी. क्लीन मोबिलिटी के लिए ग्लोबल प्रोवाइडर बन सकता है बिकॉज ऑफ अफोर्डेबल एंड स्केलेबल प्रोसेस दैट आर अवेलेबल इन आवर कंट्रीज. एंड व्हेन वी लुक एट द नॉइज ऑल्सो, द सम ऑफ द इंडियन सिटीज have worst noise pollution level in the world. तो ये सारी चीजें है कि जिससे लग रहा है कि हमको इसमें से शिफ्ट होना चाहिए. वी मस्ट शिफ्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल वन टू क्लीन मोबिलिटी. अब इसके एडवांटेज क्या होंगे अगर आप शिफ्ट हो रहे तो क्या फायदा हो रहा है? द फर्स्ट एडवांटेज इज दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल हेल्प इंडिया टू सेव अप टू $300 billion, दैट इज अराउंड 20 लाख करोड़ इन ऑयल इंपोर्ट. अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो जाता है, इंडिया अगर शिफ्ट हो जाता है, तो ये तो सब कुछ आपका ऑयल इंपोर्ट पे बच जाएगा. सेकंड बेनिफिट ये होगा कि CO2 इमिशन दैट कैन बी रिड्यूस बाय 1 gigaton बाय 2030 इफ वी यूज द EV. एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा. राइजिंग फ्यूल प्राइसेस का जो प्रॉब्लम आ रहा है दैट विल मिनिमाइज, एंड सो इट विल हेल्प टू improve the business of electric vehicle. The government is going to initiate some initiated some of the schemes, just like the favorable policy FAME 1 and FAME 2. They are going to increase the providing the incentive so as to increase the adoption of electric vehicle. स्मार्ट सिटी इज a very common word, हम लोग सब तरफ सुनते आ रहे. तो स्मार्ट सिटी में एक ये भी चीज है कि दैट स्मार्ट सिटी शुड प्रमोट the use of electric vehicles, and so that gives a growth of electric vehicle in India. Then charging infrastructure industry एक बहुत बड़ा opportunity हो सकता है. that there should be the foreign players, or there should be the big players in the market. They can invest through FDI in that charging infrastructure, क्योंकि आगे चल के पेट्रोल पंप रिप्लेस होने वाले चार्जिंग स्टेशंस में. So now you can imagine that how many charging stations are required. Some of the PSUs and giant sectors, private giant sectors, they already enter in that segment and they start working on it. Examples है कुछ NTPC, Tata Power, BHEL, Fortum India, ये सारे लोग अभी से काम कर रहे हैं e-vehicle में, because they know that what is the future of e-vehicle. When we shift to the e-vehicle, एक और बेनिफिट ये होगा कि we know that running cost of e-vehicle is just 1/3 of the conventional vehicle, क्योंकि उसका जो चार्जिंग टाइम है उसको जब कंपेयर करोगे आप विद कन्वेंशनल व्हीकल, क्योंकि कन्वेंशनल जो व्हीकल है आपका इसका इफिशियंसी भी बहुत कम होता है. 29-30% इज ओनली इफिशियंसी. When we look at the maintenance point of view, the battery operated vehicles are having lesser maintenance because less number of moving parts, बहुत कम parts है compared to the conventional. Health problem कम हो जाएंगे because harmful emission जो होगा that is going to be reduced, so that will lead to improve the air quality, and which is a better, or which is a good for the health of the human being. The next one is they also produce the less noise as compared to the conventional engines. So the cities those are facing right now the noise problem issues, and that can also reduce by switching from the conventional to electric vehicle. अब गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि what is the initiative taken by the government so as to improve the, or so as to
boost the market or adoption of the electric vehicle. तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या चल रहा है कि गवर्नमेंट फंडिंग एंड इंसेंटिव फर्स्ट ड्राइवर जो है कि गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग good amount of incentive. Government is providing a funding for research and development and also incentive so as to improve the increase the adoption of e-vehicles. Auto manufacturer EV pipeline. तो जितने भी ऑटो मैन्युफैक्चरर है ये सब लोग क्या कर रहे हैं कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज लुकिंग एट द फ्यूचर. एंड थर्ड वन इज एनवायरमेंटल कंज्यूमर. अवेयरनेस बढ़ रहा है सबका. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द एनवायरमेंट, एंड सो बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द एनवायरमेंटल कंसर्न द कंज्यूमर्स आर लुकिंग फॉर व्हीकल दोज आर लेस पोल्यूटिंग. नाउ ड्राइवर्स फॉर ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया. क्या चीज है कि वाई गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग. ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका मार्केट बहुत ज्यादा रहेगा इंडिया में, और वाई पीपल आर गोइंग टू अडॉप्ट द ई व्हीकल. If you look at the top 20 cities having the highest air pollution, out of the top 20, 13 cities are from India, and this is alarming. कि जो top 20 सिटी ऐसे है कि जहाँ पर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें से 13 सिटीज इंडिया की है. तो आप परसेंटेज दे सकते हैं कितना है उसका, मीन्स अराउंड 70%. अगर आप ईवी में चले जाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में चले जाते हैं, 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल इज देयर, then what will happen that the emission is reduced by 2.5 pm by 2035. एक स्टडी हुआ है, स्टडी यूएनईपी का बोलना है, यूनाइटेड नेशंस, कि इतना आपका ड्रॉप हो सकता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी सेट अ टारगेट ऑफ 175 गीगावाट पावर फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेस by 2022. Okay, and whenever the renewable sources are solar, out of that 1100 gigawatt is produced from the solar, and when that much of power is produced, the electric vehicles are going to become more reliable because use of that renewable energy or utilization of that energy which is stored in the form of batteries. But at the same time there is a need for proper planning of the growth of electric vehicles, because we need that much of charging infrastructure, also the monitoring. Okay, and if there is unplanned increase in penetration, मतलब बहुत सारे ई vehicles अगर रोड पर आ गए तो उसका भी एक प्रॉब्लम आएगा कि एज ऑफ नाउ ऑल्सो वी आर फेसिंग इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज. पीक लोड में अभी भी हम लोग लोड शेडिंग या पावर कट का इश्यूज फेस कर रहे हैं. सो इफ मोर नंबर ऑफ व्हीकल्स अनप्लान increase is there, then it will stress the distribution network. अब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है, मैंने बोला कि गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय द स्कीम्स लाइक फेम 1 एंड फेम 2. फेम 1 is nothing but the faster adoption and manufacturing of electric vehicles, hybrid and electric vehicles. अब इसमें गवर्नमेंट क्या करता है कि in that scheme government is providing an incentive to purchase the electric vehicle. आज भी अगर आप बाइक खरीद रहे हैं तो आपको 18 से 20,000 30,000 तक का इंसेंटिव मिलता है. व्हेन यू गो फॉर कार इट इज अप टू 1.38 lakh. ओके, सो यू माइट बी नोन दैट वेरिटो लॉन्च द ई व्हीकल इलेक्ट्रिक कार लास्ट ईयर, और उस पे आपका जो इंसेंटिव था दैट इज अराउंड 2 lakh rupees. सो देयर इज नो टैक्स, देयर इज नो रजिस्ट्रेशन फी, and even their name plates, उसका जो number plate, they are in green color so as to indicate the people that this car is producing the less amount of emission, मतलब और zero emission at all. So पहला जो था कि एक incentive देना कार परचेस के लिए. Second one, the government is releasing tender to increase the charging infrastructure in the country. क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आकर के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. उसको जो फ्यूल लग रहा है दैट फ्यूल इज the charging of batteries, electricity, and that is possible just by improving the charging infrastructure. अब फेम 1 के अंडर में क्या था कि फेम के अंडर में गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द इंसेंटिव फॉर स्कूटर, मोटरसाइकिल एंड फॉर कार आल्सो. दैट फेम इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन planned by government of India, and that entire information is available on the website also. Now what that the NEMPP is doing, that recent initiative taken by the government of India, the first initiative is that government encourages the foreign investor to invest in that
automobile sector, that e-vehicle, and it permits 100% FDI. जनरली हमारे यहाँ पे 50% तक के तो बहुत सारे सेक्टर्स में है, बट फॉर e-vehicle गवर्नमेंट अलाउज 100% FDI. Government also develop the government want to develop that India to be a global manufacturing center, and so because of that he is investing in R&D labs also. So under the National Automotive Testing and R&D infrastructure project, the government of India is planning to set up R&D center at a total cost of US dollar 388.5 million to enable the industry at par with the global standard. मतलब गवर्नमेंट उसके लिए R&D के लिए बहुत सारा खर्चा कर रहा है. दूसरा एक कर दिया गवर्नमेंट ने कि द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट शॉर्ट लिस्टेड 11 सिटीज, 11 सिटीज ऐसे इंडिया के उन्होंने आइडेंटिफाई किए कि जहाँ पर दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कि जहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करेंगे फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब सिटी बसेस के लिए आपका. Government also going to set up the incubation center for startup working in electric vehicle. Incubation center के लिए भी फंडिंग कर रहा है, उसके लिए भी गवर्नमेंट काम कर रहा है. अब ये सब करने के बाद में मतलब why the electric vehicles are needed, what are their benefits, what the government is doing, or what are the government policies for the adoption of the electric vehicles, and now what is achievement, कि हम लोग अब कहाँ हैं आज. So when we look at the achievement for the past 4 years, in 2015 there were 5197 vehicles, those are being supported by FAME for the incentive, and it increased up to 1,92,451 in March 2018. Similarly, when you look at the 17-18 data, there were 912 two-wheelers, 2,200 three-wheelers and 185 four-wheelers, and 10 light commercial vehicles were supported under the FAME scheme. For testing and research center, which has been established by Government of India, तो कहाँ कहाँ एस्टेब्लिश किए, एक एस्टेब्लिश है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ICAT मानेसर में. दूसरा एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमोटिव इंस्पेक्शन मेंटेनेंस ट्रेनिंग, इट इज इन सिलचर. Another unit is established as a National Automotive Testing Track at Indore, Automotive Research Association of India ARAI Pune, and Global Automotive Research Center at Chennai. Under the Industry 4.0 and Samarth Udyog, the Democom Experience Centers are being set up in the country for the promotion of smart and advanced manufacturing, helping SME, small and medium scale industries, enterprises to implement the Industry 4.0, जिसमें आप ऑटोमेशन और डाटा एक्सचेंज में काम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग. Now when we look at the business opportunities, अब इसमें दो चीजें हैं. One is from the employability point of view. Second one is for business opportunities. The participants those are attending this webinar, if they are interested to go for their own business or start up their business in electric sector, then what are the opportunities? पहला business opportunity है electric car servicing garage. अभी आज जो हम लोग गैरेज देख रहे हैं, these are the garages for the repairing and maintenance of the conventional IC engine. But just imagine after 2025 and 30, more number of electric cars are there, electric vehicles are there on the road, and so there are huge need of electric car servicing garage. इसमें जनरली हम लोग मोटर का काम होगा, मोटर रिपेयर, इन्वर्टर रिपेयर, वायरिंग, ये सब कुछ काम चलेगा. सेकंड business opportunities for EV charging station. As I told earlier also, EV charging station मतलब आज का पेट्रोल पंप है आपका, कि पेट्रोल पंप की ज़रूरत कैसे है वैसे EV चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत होगी, कि जहाँ से आपको बैटरी चार्ज करके मिलेगा एंड दैट यू कैन यूज़ फॉर द रनिंग ऑफ व्हीकल. इसमें दो सिस्टम्स होंगे, होम बेस्ड चार्जिंग स्टेशन, प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन. आज भी ऐसा होता है कि जो लोग रिक्शा खरीद रहा है या बाइक खरीद रहा है वो अपने घर पे ही चार्जिंग कर लेता है. ओके, बट they know that how much is the maximum range, and so at the end of the day he must go for the charging once again. Electric car charging station business opportunity will be practical in many countries. अभी बहुत सारे कंट्रीज ऐसे यूरोपियन कंट्रीज की जहाँ पर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन गया है कि जस्ट दे आर
operating it just like a petrol pumps. Okay, and because number of EVs are being more on the road in those countries, तो भारत में भी जैसे बढ़ेगा चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस भी बढ़ता जाएगा. देन इलेक्ट्रिक कार स्प्रेइंग वर्कशॉप, इलेक्ट्रिक कार का जो बॉडी रहेगा वो अपने इससे अलग आएगा. सो देयर में बी मेनी शेप एंड दैट कैन बी spray workshop is required for the spraying and painting of these vehicles. Then charging station management, अब जितने चार्जिंग स्टेशन रहेंगे उसका एक मैनेजमेंट लेगा कि how you can manage this charging station so as to make it to be profitable business. Okay, if the number of charging station increases, the possibilities to start and run a complete charging station management is very high. इलेक्ट्रिक वर्कशॉप फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब इसमें क्या होगा कि सिर्फ इलेक्ट्रिक रिलेटेड काम चलेंगे, मोटर है, सर्किट्स है, वायरिंग है, इसके लिए वर्कशॉप चाहिए. होम चार्जिंग स्टेशन, इसमें दो चार्जर मिलेंगे. लेवल 1 चार्जर, दोज आर अवेलेबल विथ इलेक्ट्रिक व्हीकल, बट लेवल 2 चार्जर्स आर नॉट अवेलेबल, बट दे आर नेसेसरी टू फास्ट चार्ज द इलेक्ट्रिक कार. कि आपका होम चार्जिंग सिस्टम है, मेरे पास स्पेस है, मैंने वहाँ इंस्टॉल कर दिया है, एंड आई एम हैविंग अ लेवल 2 चार्जर. सो within a 30 minute to 1 hour there should be fast charging of that vehicle. चार्जिंग स्टेशन सेटअप ट्रेनिंग सर्विस, अब इसमें एक और बिजनेस आ जाएगा कि आपको जो चार्जिंग स्टेशन बनाना है, जैसे पेट्रोल पंप इतने सारे होंगे तो उसको ट्रेनिंग देना होगा. ओके, एंड सो देयर शुड बी टेक्निकल ट्रेनिंग फॉर द चार्जिंग स्टेशन, द पीपल दोज आर वर्किंग इन दैट चार्जिंग स्टेशन, एंड सो देयर इज ऑल्सो द रिपेयरिंग ऑफ दैट चार्जिंग स्टेशन बिकम्स अ बिजनेस. इलेक्ट्रिक कार रेंटल सर्विस, अगर कोई नहीं खरीद रहा आज भी इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक कार, कुछ एरियाज है, कुछ सिटीज़ है कि जहाँ पर आपको रेंट पे मिलता है, सो यू कैन डू दैट बिजनेस ऑल्सो. इलेक्ट्रिक कार रेंट सर्विसेज कैन बी स्टार्टेड. स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ते जाएंगे, रोड पे ज़्यादा आते जाएंगे, उसका मेंटेनेंस होगा. व्हेन मेंटेनेंस कम्स देन देयर इज अ नीड ऑफ स्पेयर पार्ट्स. सो स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग, देयर सेलिंग, इट ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ द गुड बिजनेस to be started. Then इलेक्ट्रिक कार बैटरी शॉप, अब इलेक्ट्रिक कार का सबसे इम्पोर्टेंट मेन एक कंपोनेंट रहेगा वो होगा बैटरी, एंड वी नो दैट द बैटरी इज टू बी रिप्लेस आफ्टर 3 year 5 year और अप टू 10 years डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बैटरी. सो इलेक्ट्रिक कार बैटरी सेल शॉप वुड बी प्रॉफिटेबल वेंचर एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इंक्रीजेस. इलेक्ट्रिक कार वॉशिंग, ये थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि आपका इसका शेप, इसका वेट, एवरीथिंग कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज टू बी डिफरेंट. सो दिस अनदर बिजनेस. मोबाइल इलेक्ट्रिक कार रिपेयर सर्विसेज, कि आपका गाड़ी बीच में कहीं खराब हो गया है, यू कैनॉट टेक इट अप टू द गैरेज शॉप, सो यू कैन यूज अ मोबाइल इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल वैन दैट इज यूज टू रिपेयर द व्हीकल एट द पॉइंट ऑफ ब्रेकडाउन. तो ये एक बिजनेस हो सकता है. फ्रेंचाइजिंग रीसेलिंग, अगर आप लोकल मैन्युफैक्चर बना दिए, जैसे नासिक में बन रहा है, तो यू कैन गो फॉर द रीसेलिंग बिजनेस और फ्रेंचाइजी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. पोर्टेबल चार्जिंग स्टेशंस, इसको भी बहुत सारा डिमांड आने वाला है कि आपके पास अगर पोर्टेबल चार्जिंग स्टेशंस है तो आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट कैन बी रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ एट द टाइम ऑफ इमरजेंसीज. तो इमरजेंसीज में ऐसा कार बंद हो गया है, नहीं है मेरे पास, देन यू कैन शिप दैट पोर्टेबल चार्जिंग स्टेशन. Solar charging installation center, this is another business which is giving opportunity for the renewable energy and also for the electric vehicles. कि आपके पास बहुत सारा जगह रखा हुआ है, you can install the solar PV system. Solar PV system से आप चार्जिंग स्टेशन चलाओ, and with the help of charging station you can charge the batteries. ऑनलाइन शॉप फॉर इलेक्ट्रिक स्पेयर, वो भी आप कर सकते हो, खुद का ऑनलाइन शॉप शुरू कर सकते हैं. यू कैन सेल आउट दी स्पेयर पार्ट्स थ्रू दैट ऑनलाइन सेल्स. ऑनलाइन शॉप फॉर इलेक्ट्रिक कार रीसेलिंग, उसके लिए कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक कार चार्ज एंड चिल स्टेशन, की जो चार्जिंग स्टेशन आपके रहेंगे इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस इंजन के कंपेयर में. सो दैट टाइम कैन बी यूटिलाइज बाय द ड्राइवर्स और बाय द ओनर्स, ओके, इन दैट चिल स्टेशन वेयर ही कैन ड्रिंक अ कॉफ़ी, वॉच मूवी, हैव अ मील, प्ले गेम एक्सेट्रा, ऐसा कर सकते हैं उसमें. देन लास्ट माइल कनेक्टिविटी, the number of operators already started the business in Europe using electric scooter. भारत में भी बहुत सारे आ गए, इंडिया में भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ गए. तो क्या होगा कि यू कैन पे एंड यूज द इलेक्ट्रिक मोटर पार्क नियर बाय जस्ट लाइक रेलवे स्टेशन एंड ट्रैवल टू एडजेसेंट लोकेशन. ये आपका हो गया जस्ट लाइक द
बाइसिकल शेयरिंग नासिक में जो यूज़ किया था स्मार्ट सिटी में, ऐसा आगे आ सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल विल बी देयर. Now when you look at the Indian EV scenario, करंट में क्या है, क्या सिनेरियो अभी हमारा या क्या टारगेट रखा है. सो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी मिशन प्लान 2020, उन्होंने एक टारगेट सेट किया था. दैट टारगेट इज टू डिप्लॉय 5 to 7 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री बाय 2020. Just because of this COVID-19, the target is not in position to complete, but the government of India is emphasizing the importance of the electric vehicle, and so the government also giving a thrust to incentive and coordination between industry and academia. The government also also set a target that there will be the 4 lakh passenger battery vehicles car, okay, to be there on the road, and so that will avoid the 120 million barrels of oil and 4 million tons of CO2. Lowering of vehicle emission एक और टारगेट है 1.3% by 2020, and total investment required is around the 20,000 to 23,000 crore rupees. Now when you look at the current scenario कि इतना सब करने के बाद आज क्या हो गया है कि आज का अगर सिनारियो देखा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस द दीन दयाल स्कीम एक गवर्नमेंट ने शुरू किया था इन 2014, दैट हेल्प्स for the financing and procurement of battery rickshaws in the countries. So 2015 में एक बिल पास किया गवर्नमेंट ने, आपको पता होगा, that motor vehicle bill, and that motor vehicle will empower the e-rickshaws as a valid form of commercial transport. उसमें ये चीज कह दिया गया कि e-rickshaws वैलिड रहेंगे कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के लिए. 3-wheel vehicle run by battery power of of number more than 4000 watt. 4 पैसेंजर के लिए लगेज दिया था, उसमें 50 kg है, एंड सिंगल ट्रिप अंडर 25 किलोमीटर्स. अंडर दैट ई रिक्शाज दिल्ली में 4000 ई रिक्शाज थे इन 2010. इन 2014 it become 1 lakh, and now it is integral part of transport ecosystem Delhi. When you look at the Tripura, Tripura is the first state in the India, okay, that regulate the functioning of e-rickshaws, and they come up with the Tripura battery operated rickshaw rules in 2014, and under that amendment, the Tripura government started the guidelines, initiated the guideline norms such as for the driver age limit, license fee, renewal fee, etc., and already 22,000 licenses were been granted by the government of Tripura. Now when you look at the picture, अभी हम लोग इसमें देख रहे थे कि इतना सारा पेनिट्रेशन हो गया है, दिल्ली में ई रिक्शा यूज हो रहे हैं, त्रिपुरा में यूज हो रहे हैं, कुछ और पार्ट है, बट स्टिल द penetration of these vehicles or the number of these vehicles on road is very much limited, क्योंकि उसके लिए कुछ challenges है. क्या challenges है हमारे पास में? The large scale penetration of electric vehicle, it require both demand side and incentive. इसमें दोनों चीज है. सिर्फ इंसेंटिव बढ़ा दिया तो भी नहीं चलेगा, ओके, तो आपको डिमांड साइड बढ़ाना होगा. इम्प्रूव चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस द बिग इशू, क्योंकि अभी भी ग्रिड से पावर नहीं मिल रहा है बहुत सारी जगह पर. दूसरा है रिड्यूस मास, decrease material and manufacturing cost, improving the hardware and battery alternative to maximize the nickel metal hybrid which is currently used in the vehicles. अभी तक क्या अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि ई व्हीकल्स के लिए मोस्टली वी डिपेंड ऑन द चाइनीज कंट्रीज और चाइनीज मैन्युफैक्चरर की. चाइना में से सब चीजें बन के आ रही है एंड वी आर गोइंग टू असेंबल इट इन इंडिया. आपको सुनकर हैरानी होगा कि दिल्ली में एक मार्केट है, दैट मार्केट इज जस्ट फॉर द ई व्हीकल्स. सो यू जस्ट गो देयर एंड आस्क फॉर द स्पेयर्स, दे विल गिव द लिस्ट ऑफ दैट स्पेयर. आप लिस्ट ले लो और असेंबल करके आप बना सकते हो. तो जरूरत है कि भारत में इस पर भी काम होना चाहिए, दैट दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर देयर ओन कंपोनेंट, देयर बेसिकली द मोटर एंड बैटरी. ये दो चीजें ऐसी है कि जिसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट जो है आपका टोटल कॉस्ट ऑफ दैट व्हीकल में से 40% कॉस्ट सिर्फ बैटरीज का होगा. सो वहाँ इंप्रूवमेंट करने की बहुत जरूरी है. नाउ देयर आर सम प्लेयर्स इन द मार्केट कि जिसके व्हीकल्स अवेलेबल है मार्केट में. Hyundai Kona इलेक्ट्रिक है, महिंद्रा ई वेरिटो है, महिंद्रा E20 है,
MGS ZS ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, टाटा टिगोर का इलेक्ट्रिक व्हीकल आया 2019 में, टाटा नेक्सॉन है. So already they launched their product and those are running on our roads. When we look at the motorcycles, Indian motorcycle, तो उसमें रिवॉल्ट मोटर है, टॉर्क मोटर है, एमफ्लक्स मोटर है, अल्ट्रा वॉलिटी ऑटोमोटिव्स है मोटरसाइकिल में, और दूसरे भी बहुत सारे. स्कूटर्स में आथर एनर्जी, बजाज चेतक है, टीवीएस आई क्यूब है, हीरो इलेक्ट्रिक फोटोन है, ओकिनावा है, याकुजा है, ईवोल्ट एंड ओमजे. Likewise, there are so many local manufacturers also. Those are manufacturing their vehicles on two-wheelers. But when we look at the current scenario, people are purchasing, or there are more number of two-wheelers or even three-wheelers, rickshaw on the road compared to the four-wheelers and some buses or big commercial vehicles. When you look at the cost for Tata Tigor is ranging from 9.45 to 9.85 लाख. अब इसमें आपका वेरिटो का 9.21 से 9.46 है. इसमें गवर्नमेंट का सब्सिडी आप डिडक्ट करने के बाद में जो कॉस्ट आए, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग अ गुड सब्सिडी फॉर दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सो दीज आर दी रेफरेंसेस दैट वी रेफर टू prepare this presentation. Okay, so I thanks to all of you for listening and for attending this seminar. Thank you.